हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर लेटेस्ट वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सेलेनियम के बारे में। सेलेनियम एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है विच इज़ वाई वी हैव ब्रोकन डाउन द वीडियोस इन मल्टीपल शॉर्ट वीडियोस सो दैट ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कैन बी कवर्ड। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट topic that we are going to cover is what is selenium. Okay, the second thing that we are going to cover is सेलेनियम को सेटअप कैसे करना है एंड ऑल्सो ब्राउज़र हम कैसे ओपन करेंगे। द थर्ड थिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द वीडियो इज हाउ वी कैन ओपन अ वेब पेज इन द ब्राउज़र एंड नेविगेट टू अ स्पेसिफिक वेबसाइट। The fourth thing that we are going to cover in the video is how to locate a web element on a website and what are the different ways that we can locate an element. The last topic in this video that we are going to cover is how to perform different operations on the identified web elements. We are going to go through different actions that we can perform on the identified web elements like click, send keys, etc. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एंड लेट्स डिस्कस व्हाट सेलेनियम इज। सेलेनियम एक पॉपुलर फ्री लाइब्रेरी है जो हमें वेब बेस्ड टेस्टिंग करने में हेल्प करती है। It has various tools and libraries that let you write scripts to control web browsers automatically. Selenium is especially useful for testing web applications. Testers can use it to mimic how users interact with the web application and check if it works correctly. Okay, so now that we have covered what Selenium is, let's move on to how we are going to set it up and using Selenium हम browser को कैसे open करेंगे. So the first thing that you're gonna need to do is go to Maven repository. I'm going to go to my browser और मैं सर्च करने वाला हूँ Selenium dependency MVN repository. Okay. So यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मुझे Selenium repository के लिए यहाँ पे different versions मेरे को दिख रहे हैं. ठीक है. I'm going to select 4.18 out of this and I'm going to copy the dependency. ठीक है. तो मैं यहाँ से डिपेंडेंसी कॉपी करूँगा और इसको मेरी pom.xml जो है उसमें पेस्ट कर दूँगा। ठीक है। तो इफ़ यू आर अ लिटिल कंफ्यूज कि pom.xml क्या है और ये किस लिए यूज़ करी जाती है, आई हाईली रिकमेंड यू वॉच आवर अदर वीडियो ऑन मेवन where we explain Maven as a build tool and dependency management using the pom.xml file. जैसे ही आप pom.xml फाइल में नाउ मैं यहाँ पे pom.xml में मेरी डिपेंडेंसी ऐड कर देता हूँ and you can see that my dependency has been added successfully. Okay, I will need to refresh, reload the changes that my dependency has caused. ठीक है. जैसे ही मैं इसको रिलोड करूँगा मेरी डिपेंडेंसी डाउनलोड होगी और मेरे प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगी. ठीक है. तो जैसे ही आप अपना प्रोजेक्ट रिलोड करोगे यू विल सी दैट द कलर ऑफ द डिपेंडेंसी विल चेंज एंड इट विल बिकम वाइट. सो दैट मीन्स दैट योर डिपेंडेंसी हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली टू योर प्रोजेक्ट. तो अब हमारा सेलेनियम का सेटअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है. सो लेट्स गो टू आवर टेस्ट क्लास एंड लर्न हाउ टू ओपन द ब्राउज़र. तो इसके लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज let me remove this line first and then we are going to add two lines. Web driver equal to new Chrome driver. Okay, and I'm going to add another line where I will enter webdriver.cat and myntra.com. Okay, right. So for this I will have to import the class and I'm going to import this WebDriver class. तो आप देख रहे हो कि मेरे सारे errors resolve हो चुके हैं. Now let's discuss what each of these lines mean. वेब ड्राइवर हमारी वो कमांड है जिसके थ्रू हम ब्राउज़र को इनिशियलाइज करने वाले हैं. तो मैं यहाँ पे वेब ड्राइवर हमने इनपुट करा हुआ है. बेस्ड ऑन दिस द ड्राइवर विल बी इनिशियलाइज्ड. नाउ द न्यू कीवर्ड दैट वी आर यूजिंग हियर दैट इज यूज्ड टू create a new instance of the class Chrome driver. अब
In the next line, we are going to use this driver variable to perform actions. First one of these actions is navigating to a website. So to make you understand the use of both these lines better, let me remove the second line. I am going to comment this line, okay? And अब मैं मेरा जो टेस्ट है उसको रन करने वाला हूँ, okay? So when I run this test, what it's going to do is it's going to open a browser. It's going to open a Chrome browser. तो आप जैसे देख पा रहे हैं अभी मेरे प्रोजेक्ट की एक बिल्ड क्रिएट हो रही है. If you want to learn more about what a build is and how it is created, you should refer to our other video, okay? तो आप देख रहे हो कि मेरे प्रोजेक्ट का बिल्ड क्रिएट हो रहा है एंड मेरा टेस्ट जो है वो रन हो रहा है. ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरा ब्राउज़र ओपन हो गया है, लेकिन आप देख पा रहे हो कि इसमें कोई भी वेबसाइट जो है वो ओपन नहीं हुई है. ठीक है, तो अभी मैं ये ब्राउज़र विंडो जो है वो मैं क्लोज़ कर देता हूँ एंड लेट मी अनकमेंट दिस सेकेंड लाइन. ठीक है, और मैं इस प्रोजेक्ट को, इस टेस्ट को एक बार फिर से रन करता हूँ जस्ट टू शो यू व्हाट दिस सेकेंड लाइन डज. तो जैसे ही मैं ये सेकेंड लाइन अनकमेंट करूँगा तो पहले मेरा ब्राउज़र ओपन होगा और उस ब्राउज़र में एक वेबसाइट मेरी ओपन होगी विच विल बी myntra.com. तो जैसे आपने देखा कि मेरा ब्राउज़र जो है वो ओपन हुआ है एंड मेरी उसके अंदर एक वेबसाइट ओपन हो गई है myntra.com. So I hope by now you have understood what you need to do to open a browser and then navigating to a website. Okay, so by now we have learned how to open the browser and open a website. Now let's discuss how to find elements on the opened website. सबसे पहले let's start with what a web element is. The web element represents an element on a web page. A web element can be anything like a button, a password input field, or maybe a gender drop down. Okay. Now to interact with any web element, पहले हमें वो element web page पर ढूंढना पड़ेगा, which is where locators come in use. Locators are basically identifiers of the elements. We can use different ways to locate a web element. Let's discuss the most important of these locators one by one with example. Okay, so by now we have opened the website. Now let's discuss how to locate a web element on a website. Okay, so the first locator that we are going to learn about is ID. So let's learn how to use this locator using a real world example. Okay, so now you can see I have opened this website. यहाँ पे आप देख पा रहे हो. Let's use this website instead of Myntra because यहाँ पे हमारे लिए लोकेटर्स को समझना थोड़ा easier रहेगा. Okay, so I am going to change this to the test website. Okay, now for locating a web element with ID, आपको क्या करना होगा? सबसे पहले you'll have to click on this and right click this and inspect. ठीक है, तो जैसे ही आप उस एलिमेंट पे क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे तो जो उसका टैग है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा. तो HTML में वो कहाँ पे लोकेटेड है, आप डायरेक्टली वहाँ पे नेविगेट कर जाओगे. ओके, तो नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये इनपुट टाइप की फील्ड है और उसमें हमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं. ठीक है, टाइप टेक्स्ट है, क्लास जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू फॉर्म इनपुट है एंड अदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स. सो फॉर the ID locator we are going to use the ID attribute of this tag. Okay, तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेरी ID जो है उसकी वैल्यू है यूज़र नेम. ओके, तो मैं यहाँ से यूज़र नेम कॉपी करूँगा एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू. ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू लोकेट दिस वेब एलिमेंट. ओके, तो वी आर गोइंग टू यूज़ द ड्राइवर. ठीक है, ड्राइवर डॉट, अब मुझे फाइंड एलिमेंट करना है तो मैं फाइंड एलिमेंट बाय डॉट, अब मैं कौन सा लोकेटर यूज़ करने वाला हूँ? ID. ओके, अब जो ID है इस एलिमेंट की वो मुझे यहाँ पे पास करनी है. ठीक है, अब ये मेरा कोड हुआ लोकेटर फाइंड करने का, उस वेब एलिमेंट को लोकेट करने का. अब मैं वेरीफाई कैसे करूँ कि ये एलिमेंट जो है मेरा लोकेट हुआ है कि नहीं? तो उसके लिए मैं एक एक्शन यहाँ पे ऐड कर दूँगा, डॉट क्लिक. ठीक है, तो what this will do is this will basically click on that web element. ओके, अब जो एक्शंस हैं, क्लिक है, सेंड कीज़ है, उसके बारे में हम डिटेल में बाद में डिस्कशन करने वाले हैं. ठीक है,
तो डू नॉट वरी इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। मैं इसको क्लिक को हटा के यहाँ पे सेंड कीज डाल देता हूँ ताकि हम एक इनपुट जो है वो वेरीफाई कर पाए, ठीक है, कि हमारा एलिमेंट जो है वो लोकेट हुआ कि नहीं। आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू रन दिस टेस्ट, going to open the browser and enter the website and then it's going to search the input field। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मेरा जो एलिमेंट था वो लोकेट हुआ और उसमें जो मैंने एक्शन भेजा, जो सेंड कीज मैं करना चाह रहा था, तो उसकी वजह से उसमें इनपुट चला गया। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने सेंड कीज में इनपुट डाला था एज माई इनपुट। ओके, so this was the locator ID। Okay, so the next locator that we are going to use is the class locator। In the class locator, you locate a web element based on the class attribute of that element। So let's see how to use the class locator। Okay, I'm going to open the same website again। ठीक है, तो यहाँ इस वेबसाइट पे मुझे क्लास के बेसिस पे एक एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है। लेट्स सेलेक्ट दिस लॉगिन। ठीक है, आई एम गोइंग टू सी द क्लास एज बटन एक्शन। मैं जस्ट टू वेरीफाई कि ये जो मेरा बटन एक्शन क्लास है ये यूनिक है, आई एम गोइंग टू सर्च इट हियर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक रिजल्ट मुझे मिला है। दैट मीन्स कि मेरा जो बटन एक्शन है वो सिर्फ एक बार यूज़ हुआ है एंड इट इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर। ओके, तो मैं वापस आईडी में आता हूँ एंड आई एम गोइंग टू राइट द सेम कमांड हियर एज वेल, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट, बट इस बार हम क्लास लोकेटर यूज़ करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू सेलेक्ट क्लास नेम एंड वी आर गोइंग टू एंटर द क्लास नेम हियर। ओके ओके, तो हमने यहाँ पे क्लास के नाम से सर्च कर लिया है। नाउ लेट्स ऐड एक्शन हियर दैट इज़ क्लिक। ठीक है, तो अब मैं जब इसको रन करूँगा टेस्ट को, दैट मीन्स आइडियली मेरा इस लॉगिन बटन पे क्लिक होना चाहिए। ठीक है, ओके ओके, तो मेरा ब्राउज़र ओपन हो गया है and now login click। Okay, so you can see there is a username is required error from the page because we did not provide any username or password। Okay, let's close this and now let's discuss the third and the most important locator that we are going to discuss in this video, which is the XPath locator। Unlike other locators we have discussed previously, this locator is not limited by any specific attributes। XPath में हम कोई भी attribute के साथ उस element का locator create कर सकते हैं। Let's see the same with an example। Okay, तो I'm going to do the same with this as well। I'm going to comment this out for now and I'm going to search for a locator। Let's discuss the password input field। Okay, now this password input field has multiple attributes such as type, class, data test, ID, name, and placeholder। Okay, we can create the XPath locator based on any of these attributes. And so let's first use the placeholder attribute। Okay, now there is a certain syntax to creating an XPath। You first use the forward slashes, then mention the tag that you are going to use. In our case it's an input tag, and then you use the colons and you enter the attribute। Okay, so at the rate I'm going to use placeholder and the value of placeholder। Okay, now for the placeholder value here this is password। Okay, so I'm going to search it based on this। Okay, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेरा एलिमेंट जो है वो लोकेट हो गया है। So XPaths even allow you to search your locators before using those in your project। So it gives you an additional functionality where you can verify that the locator that you have created is the correct one। ठीक है, तो I can verify that my locator is correct। I'm going to perform action on this now। Okay, driver.find element and instead of ID or class name this time we are going to use XPath। Okay, मैंने XPath यहाँ पे किया and I'm going to enter the XPath। Okay, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सेंड कीज कर देता हूँ जस्ट टू वेरीफाई कि यहाँ पे इनपुट मेरा प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं।
Okay, so this is the input that we are going to send. Now let's run the test to verify that the input is being correctly sent and the locator that we have used is the correct one. Now let's run the test again and check that our locator is as expected. अगर यहाँ पे पासवर्ड इनपुट जो है वो इनपुट फील्ड में अगर चला जाता है दैट मीन्स आर लोकेटर वॉज करेक्ट. ठीक है, इससे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो पासवर्ड फील्ड है उसमें एंट्री चली गई है. ओके, दैट मीन्स that our locator was correct. Guys, now let's discuss how we can use the web elements to perform actions on a web page. Okay, so we can perform different actions on a web page and we are going to discuss each one of them. So the first action to perform is the click action. ठीक है, यहाँ पे भी हमने click action करके देखा था. Now let's see what the click action does. तो जो click action होता है वो अलाउ करता है आपको जो माउस क्लिक होता है उसको मिमिक करने में ऑन एनी एलिमेंट ऑन अ वेब पेज. ठीक है, तो लेट्स सी अ लाइव एग्जांपल ऑफ दिस. तो मैं यहाँ से ये क्लिक जो है वो हटा रहा हूँ. लेट्स फर्स्ट रिमूव द कमेंट. ठीक है, मैं यहाँ से क्लिक का एक्शन हटा रहा हूँ एंड नाउ लेट्स डिक्लेयर दिस एज अ वेब एलिमेंट टाइप ऑफ वेरिएबल. ठीक है, मैं इसको एक वेब एलिमेंट बना रहा हूँ, लॉगिन बटन. ओके, ठीक है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन दिस वेब एलिमेंट. पहले हमें ये क्लास इंपोर्ट करनी पड़ेगी. नाउ लेट्स क्लिक ऑन दिस लॉगिन बटन डॉट क्लिक. ठीक है, तो मैं फॉर नाउ कमेंट कर रहा हूँ इस कोड को. नाउ यू कैन सी ये मेरा लॉगिन बटन है, ये फाइंड होगा एंड इस पर क्लिक होगा. ओके, मेरा जो टेस्ट है वो रन हो रहा है एंड नाउ माई टेस्ट हैज़ बीन रन. यहाँ पे मैंने लॉगिन पे क्लिक करा और मुझे यहाँ पे एरर मिल गया. दैट मीन्स मेरा लॉगिन जो है उस पर सक्सेसफुली क्लिक हो गया. तो ये था हमारा फर्स्ट एक्शन, दैट इज क्लिक. ओके, सो द क्लिक इज गोइंग टू मिमिक द माउस क्लिक ऑन एनी वेब एलिमेंट. नाउ दैट वी आर क्लियर ऑन दिस, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्शन, दैट इज द सेंड कीज. तो सेंड कीज जो एक्शन होता है दैट वी यूज whenever we are interacting with any input field. Using this send keys method, we can enter any values into the input field. Let's see how we can do that. So on this web page, we have 3 input fields: username, password. Okay, and let me open my IDE and I'm going to interact with one of these input fields. Okay, let's interact with the username first. I'm going to uncomment this code and I'm going to assign a variable to this element as well, username. Okay, and I'm going to remove this send keys here. ठीक है, मेरा send keys वहाँ से हो गया, हट गया है. मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूँ एंड सेम फॉर दिस वन एज वेल. नाउ लेट्स click on that username and enter the values, send keys, and you can enter any string that you want to enter using the send keys method. I'm going to enter some numbers in the username. Let's rerun our test to see the results. Okay, तो यहाँ पे ये नंबर जो है वो यूजरनेम इनपुट फील्ड में पॉपुलेट होगा 529782. ओके, दैट इज द इनपुट दैट वी आर सेंडिंग थ्रू आवर वेब ड्राइवर. तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरी जो इनपुट फील्ड है वो पॉपुलेट हो गई है और उसमें जो एक्शन मैंने परफॉर्म करा था वो वहाँ पे डेटा पॉपुलेट हो गया है. सो द थर्ड एक्शन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दैट गेट टेक्स्ट एक्शन. यूजिंग दिस एक्शन यू कैन गेट द टेक्स्ट ऑफ एनी लोकेटेड एलिमेंट इफ देयर इज एनी. तो चलिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल. ओके, तो गोइंग टू दिस स्क्रीन आई कैन सी दिस टेक्स्ट. तो चलिए अगर हम चाह रहे हैं कि ये टेक्स्ट मैं एक्सट्रैक्ट करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका H4 टैग है. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस एज एन एक्स पाथ एंड देन आई एम गोइंग टू गेट द टेक्स्ट ऑफ दिस. तो लेट्स कमेंट दिस फर्स्ट. ठीक है, मैं ये कमेंट करने वाला हूँ एंड अब जो टेक्स्ट मैं गेट करूँगा उसको मुझे स्टोर भी करना पड़ेगा कहीं. तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टी क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैं टेक्स्ट स्टोर करने वाला हूँ by dot
XPath and H4. ओके, अब इसमें T में मुझे यहाँ पे एंटर करना है बस एक गेट टेक्स्ट। तो ये मेरा एक्शन है गेट टेक्स्ट की इस H4 का, इस लोकेटर का मुझे टेक्स्ट है वो फैच करना है। मैं जस्ट टू वेरीफाई दिस गेट टेक्स्ट इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, मैं यहाँ पे T को प्रिंट करवा लेता हूँ। ठीक है, और अब मेरा टेस्ट जो है मैं फिर से रन कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मेरा टेस्ट रन होगा यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं परफॉर्म होने वाला है ऑन द स्क्रीन, बट वी आर गोइंग टू फैच द टेक्स्ट फ्रॉम द पेज। ओके, आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे जब मैं कंसोल में जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे मेरा एक्सेप्टेड यूजर नेम्स ये टेक्स्ट जो है वो पेज से फैच होके यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ठीक है, ओके, सो द लास्ट एक्शन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज क्लियर। तो क्लियर जो एक्शन है व्हाट इट डज इज इट विल क्लियर द इनपुट फील्ड। अगर इनपुट फील्ड में कोई भी इनपुट है करंट, देन इट्स गोइंग टू क्लियर दैट। ओके, तो द सेम वेब एलिमेंट वी आर गोइंग टू यूज बिकॉज इट विल हैव ऑलरेडी द वैल्यूज। तो मैंने यूजर नेम डॉट सेंड कीज में ये इनपुट डाला है एंड देन आई डिड यूजर नेम डॉट क्लियर। ठीक है, तो मैं अब जब ये टेस्ट रन करूँगा तो पहले वेब ड्राइवर क्या करेगा, उस इनपुट फील्ड के अंदर 529782 जो मेरा इनपुट है वो पॉपुलेट करवाएगा एंड आफ्टर दैट इट विल क्लियर द डेटा। ओके, तो जो इनपुट मैंने प्रोवाइड करवाया वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखा इट वॉज अ रियली स्विफ्ट एक्शन, जहाँ पे मेरा जो इनपुट था वो यहाँ पे पॉपुलेट हुआ एंड देन इट वॉज क्लियर इमीडिएटली। ओके, सो दीज आर ऑल द एक्शंस दैट वी कैन परफॉर्म विद सेलेनियम। ओके गाइस, तो अभी तक हमने इस वीडियो में सीखा कि हम सेलेनियम की हेल्प लेके ब्राउज़र को कैसे ओपन करेंगे, ब्राउज़र में कोई भी वेबसाइट ओपन कैसे करेंगे और उसमें से वेब एलिमेंट्स को लोकेट करके उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा होगा कि मैं हर एक ब्राउज़र विंडो को मैन्युअली क्लोज कर रहा था। नाउ इन द रियल वर्ल्ड वी कांट कीप डूइंग दैट व्हेन वी आर डूइंग ऑटोमेशन टेस्टिंग। So Selenium provides us the capability to close the browser after each test, okay, or maybe as and when expected. तो अभी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं ये सारे जो एक्शंस मेरी हो जाएंगी उसके बाद में मैं एक driver डॉट क्विट कमांड यूज़ करने वाला हूँ। driver डॉट क्विट, ये एक लाइन ऑफ कोड में ऐड करने वाला हूँ। तो अब ये क्या करेगा, जो भी मैं ओपन करूँगा वेब ब्राउज़र उसको क्लोज कर देगा। ठीक है, तो जो मेरी ब्राउज़र विंडो है उसको ये क्लोज कर देगा। ठीक है, लेट्स रन दिस टेस्ट टू वेरीफाई हाउ दिस वर्क्स। ठीक है, मैंने ड्राइवर डॉट क्विक करा हुआ है, यहाँ पे दो एक्शंस होंगी, मेरा इनपुट जाएगा और वो इनपुट मेरा क्लियर होगा फर्स्ट, आफ्टर दैट द ड्राइवर विल क्विट, द ब्राउज़र विल बी क्लोज ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो लेट्स वेट फॉर द टेस्ट टू रन। ठीक है, मेरा ब्राउज़र ओपन हुआ, वेबसाइट पे मैं गया, इनपुट डाला एंड यू कैन सी हाउ फास्ट द मूवमेंट वॉज देयर। ठीक है, मेरा ब्राउज़र इमीडिएटली क्लोज हो गया। ठीक है, तो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आपने इस वीडियो में सीखा है कि हमें ब्राउज़र कैसे ओपन करना है, वेब एलिमेंट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, और जब हमारा टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो उस ब्राउज़र को हमें कैसे क्लोज करना है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।